Hello everyone, welcome you all in class 12 geography. As you know that we are discussing the chapter 10 human settlement in the world. We have already done in this chapter the rural settlement, their pattern, their sizes, their different types. In today's module number 5, we are going to discuss about the urban settlement. In this module, we will discuss the 2 points of the urban settlement, classification of urban settlements and the functions of urban centers. So let's start the topic. Urban settlements. As you know that urban settlement growth is a recent phenomena due to the vast availability of job and infrastructure facility. Nowadays there are huge number of migrant people from rural area to urban area in search of job opportunity as well as for better living, not only in India but also in the entire world. So until the recent time, few settlements reached the population size of more than a few thousand inhabitants. If we talk, the first urban settle which reached a 1 million population, that is the city of Million. So the city which reached to the 1 million population, that was city of the London, and the year was in 1810. So the first million city of which country? That is the from London country. By 1982 approximately, means near about 1 century, or we can say 175 cities in the world had crossed the 1 million population mark. यानी 1810 तक वर्ल्ड की पहली जो सिटी थी जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन क्रॉस हुई थी वो लंदन की थी, और 1810 उसका टाइम था. 1982 तक यानी नियर अबाउट 130-40 years approximately, after 130-40 years 175 cities ने 1 मिलियन पॉपुलेशन के मार्क को क्रॉस कर लिया था. Presently 48% of the world population lives in urban area, but that is according to 2001. Presently and according to 2019 and 20, near about 55% of population lives in urban area of the entire world, and this is approximately 65 by the 2055. So the estimation of the million cities of the world, near about 55% population of the world lives in urban area. Next, the urban area, the 2 points. One is classification or urban area and the functions. So on the classification of the urban area, we can classify the urban area on 3 bases. One, on the population size, second, occupational structure, and the third, administration. So on these 3 bases we can classify the urban population. First, once again I am repeating, first the population size, second occupation structure, and the third administration. First, the population size. Population size is an important criteria used by most countries to define urban area. As you know, in India also, those area called as urban area where there is a population is minimum 5,000 and the density is more than 400 person per square kilometer. So the population size is a common criteria used by maximum country to define urban एरियाज़. यानी वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ का एक कॉमन क्राइटेरिया है किसी भी एरिया को अर्बनाइज्ड डिफाइन करने के लिए कि वहाँ की पॉपुलेशन साइज़ ज़्यादा होना चाहिए. लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज फॉर अ सेटलमेंट टू बी डेजिग्नेटेड एट अर्बन इज़ 1500 इन कोलंबिया. यानी कि कोलंबिया में, इंडिया में जैसे आपको पता है 5000 मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए तब उसे हम अर्बन एरिया बोलेंगे, लेकिन इट वेराइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वेराइज करता है. इट डिपेंड ऑन देयर पॉपुलेशन ऑल्सो, एंटायर पॉपुलेशन. सो वर्ल्ड की सबसे
स्मॉल पॉपुलेशन वाला अर्बन एरिया कहाँ पर है? दैट इज़ इन कोलंबिया. This is mentioned, need to be mentioned. Then 2000 in Argentina and Portugal, and 2500 in USA and Thailand. 5000 in India that we already discussed, and 30,000 in Japan. यानी जापान में जिन एरियाज़ की पॉपुलेशन 30,000 होगी उन्हें ही अर्बन एरिया डेजिग्नेटेड किया जाएगा. सो मीन्स इट वेराइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री कि वो अपनी पॉपुलेशन को कितना साइज रखते हैं एक अर्बन एरिया बनने के लिए. नेक्स्ट, कंट्री विथ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में चूज अ लोअर नंबर एज द कट ऑफ फिगर कंपेयर टू डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री. ये जो डिफरेंस है वाई इट इज़ सो, बिकॉज जिन एरिया में पुअर पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन इन द सेंस मीन्स लो डेंसिटी पॉपुलेशन है, तो वो अपनी कट ऑफ के अनुसार एक लोअर नंबर को कैटेगराइज करते हैं, और जहाँ हाई डेंसली पॉपुलेटेड है पॉपुलेशन है वो अपनी कट ऑफ के अनुसार एक हाई नंबर को कंसिडर करते हैं. लाइक डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, all places with a population size of 250 person are called urban area. यानी फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारी बहुत स्मॉल कंट्रीज़ हैं जहाँ 250% वाली एरिया को भी उन्होंने अर्बनाइज एरिया में कंसिडर किया. सो एज आई एक्सप्लेन यू दैट इट वेराइज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड डिपेंड ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन. 300 in Iceland, whereas in Canada and Venezuela it is 1000 person. Next, that is the occupational structure. So this is the second classification on which we classified the urban areas. Occupational structure, occupation, a common measure, the occupation. In some countries such as India, the major economic activity in addition to the size of population is in designating a settlement as urban also taken as a criteria. यानी इंडिया जैसी कंट्री में पॉपुलेशन के साथ साथ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर भी किसी एरिया को अर्बनाइज्ड कहने के लिए सफिशिएंट और एक क्राइटेरिया के फॉर्म में उसको असाइन किया गया है. लाइक एज यू नो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द definition of the urban area in India. Those area where 75% of the male engaged in non-primary activity, non-farming activity, the area is called as urban area. यानी जिन एरिया की 75% मेल पॉपुलेशन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में engaged होगी उन एरियाज़ को हम urban areas कहते हैं. So it depend on again country to country. Maximum the population of 50% more than economic productivity population engaged in non-agriculture activity. India is considered as a 75% population. Then administration. The third basis, that is the administration. So the administrative setup is a criteria for classifying a settlement as urban in some countries. In India also, लाइक जिन कंट्रीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, लाइक कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं या वहाँ पर म्यूनसिपल कमीशंस हैं या म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या नोटिफाइड एरियाज काउंसिल्स हैं, उन एरियाज़ को हम अर्बन एरिया डिफ़ाइन करेंगे. तो इंडिया में भी ये मेंशन किया हुआ है कि जहाँ एक कैंटोनमेंट बोर्ड हो, जहाँ म्यूनसिपल कमीशंस हों, दोज एरिया कॉल्ड एज अ अर्बन एरिया. सिमिलरली इन लैटिन अमेरिका कंट्रीज सच एज ब्राज़ील एंड बोलीविया, एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कंसिडर अर्बन इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन. यानी अगर वहाँ की पॉपुलेशन कम भी है फिर भी अगर वहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है तो भी उन एरियाज़ को हम अर्बन एरियाज़ बोलेंगे. लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इज़ एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू देयर फंक्शन. यानी भी किसी भी एरिया की जो लोकेशन होगी वो उस फंक्शन पर डिपेंड करेगी कि वो एरिया किस फंक्शन के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सो इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लोकेट होंगी? जहाँ मिनरल की अवेलेबिलिटी होगी. इंडस्ट्रियल टाउन दे कॉल्ड एज, जहाँ लोकल एनर्जी सप्लाई अवेलेबल होगी, जहाँ बीचेस अवेलेबल होंगे, जहाँ पर स्प्रिंग्स अवेलेबल होंगे. दोज एरिया वर्क एज आ टूरिस्ट प्लेस, वो टूरिस्ट प्लेस की तरह वर्क करेंगे. सो बेसिकली लोकेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. Location of the earliest urban settlement were based on the availability of water. यानी बेसिकली जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक वाटर, बिल्डिंग मटेरियल. सो अर्बन एरिया की जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो पहले इन मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते थे. बट ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लोकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट. यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने अर्बन सेटलमेंट के लोकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी नाउ वी आर एबल
to approach each and every infrastructure facilities to the urban areas or to any area. चाहे वहाँ रिवर की अवेलेबिलिटी हो ना हो, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर वाटर को अप्रोच कर रहे हैं. चाहे वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो ना हो, फिर भी हम वहाँ पर कॉन्क्रीट फॉरेस्टेज क्रिएट कर रहे हैं. कॉन्क्रीट फॉरेस्टेज मतलब बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मल्टीपल स्टोरीज बना रहे हैं. सो लोकेशन, नाउ अ लोकेशन इज़ अपार्ट फ्रॉम द साइट बिकॉज इट डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी. यानी टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे किया है. द एक्सपेंशन ऑफ द टाउन्स और सिटीज़ के एक्सपेंशन में टेक्नोलॉजी ने अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे किया है. सेकेंड, द फंक्शंस ऑफ अर्बन सेटल्स. The functions of urban settle, we can classify in three groups. First, administrative town. Second, trading and commercial town. And third is cultural town. यानी फंक्शंस के हिसाब से हम अर्बन एरियाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में, ट्रेडिंग और कॉमर्शियल टाउन में, एंड कल्चरल टाउन. फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अर्बन सेंटर्स. फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. National capitals, which houses the administration office of central governments such as New Delhi, Canberra, Beijing, Addis Ababa, Washington DC and London etc. are called administrative town. यानी जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स हों, जैसे दिल्ली का है, या हम कहें फॉर एग्जांपल राजस्थान का जयपुर है, तो जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स हों या नेशनल कैपिटल्स हों, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की फॉर्म में डेवलप हो गए. यहाँ वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ के एग्जाम्पल दे रखे हैं एंड यू हैव टू लर्न दीज नेम ऑल्सो. देन ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन, एग्रीकल्चर मार्केट टाउन सच एज विनिपेग, कंसास, बैंकिंग financial center like Frankfurt, Amsterdam, like inland center like Manchester, St. Louis. So all these are different trading and commercial town. जहाँ मार्केट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से ट्रेडिंग होती है, या कॉमर्शियल फॉर्म में जो इम्पॉर्टेंट एरिया है उन्हें हम ट्रेडिंग और कॉमर्शियल टाउन कहते हैं. मीन्स दे डेवलप इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन. देन कल्चरल टाउन, places for pilgrims such as Jerusalem, Makkah, Jagannath Puri, Varanasi. These are very important for the cultural aspect. यानी cultural form में भी ये सारे places बहुत important हैं. Religious places हैं जहाँ जो cultural form में या tourist form में बहुत ही develop हो गए हैं. These urban centers are of great religious importance. Additional function which the cities perform are health and recreation centers like industrial and mining, quarrying centers and transport and other area. So in 3 centers के अलावा different functions, यानी urban centers are मल्टी डायमेंशंस. सिर्फ एक ही फैसिलिटीज़ नहीं, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं. सो बहुत सारे फंक्शंस के लिए भी अर्बन सेटल्स का डेवलपमेंट हुआ है. थैंक यू.